आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के एसटी ग्लोबल पब्लिक स्कूल मदियापार भगवानपुर में पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद यादव की पुण्यतिथि मनाई गई। विद्यालय के प्रबंधक शांति यादव ने सर्वप्रथम उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और कहा कि जितेंद्र यादव एक लोकप्रिय समाज सेवी व्यक्ति थे जिनको क्षेत्र की जनता आज भी स्मरण करती है। विद्यालय के डायरेक्टर राधेश्याम ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने के लिए अनेकों संस्थाओं में अपना आर्थिक शारीरिक मदद की, जिनके प्रयास से क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतर सुधार हुआ। आइए दिखाते हैं आशीष पांडे की ये खास रिपोर्ट। Hello sir, I am Lakshmi Prajapati from 10th standard and I welcome you in this SD Global family, and today we are gathered here to pay tribute to that personality who attained his place in the feet of God. That's all. एक बताओ, 10th स्टैंडर्ड में हो, आज किसकी पुण्यतिथि मनाई गई? Sir, today we are celebrating the death anniversary of this school, founder of this school, late Jitendra Prasad Yadav. He was the founder of this school, and because of him, today we are standing here and studying and getting a proper education. आप इस समय हाई स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपेयरिंग कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। बोर्ड एग्जामिनेशन है, यूपी बोर्ड है कि? Sir, CBSE board. I am student from CBSE board from starting, and our management is always trying to provide best education because it was their dream and it also a dream of our parents and our management. What will you become future? So I want to be a surgeon in my upcoming future, and I am trying my best to gain my future. From 10th standard, and today we are gathered here to pay tribute to our founder of this school, late Jitendra Prasad Yadav. Do you know about Jitendra Prasad Yadav? Yes, sir, I know about him very well. He was the founder of our school and he was a great person, and on this day we lost this personality. Which type nature of Jitendra Prasad Yadav? Sir, he was a great person and he always thought that education is most important in everybody's life, and No, nature. so his nature was very good. He was a simple person and he have no attitude in his mind. He have no discrimination in his mind regarding any caste, religion. You saw him? Kya, sir? You saw him? No, sir, I never saw him. How can you display? Sir, from the About person, sir, from teacher, from student who know and watch him, I listen from them. Firstly, thank you, sir. I am Manya Mishra from 9th standard and I study in SD Global Public School. क्या जानते हो स्कूल के बारे में? Sir, I am studying in SD Global Public Schools and my experience is I am very satisfied to get education from this school. Your parents? And my parents also satisfied. हाँ, Yes, संतुष्ट। sir. अच्छा, क्या बनना फ्यूचर में? Sir, I want to become an IS officer. तैयारी चल रही है? Yes, sir. IAS अफसर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? Sir, firstly, from completed my graduation and I am trying to crack UPSC. नेता नहीं बनना चाहती? Sir, to lead a country, sir, leader is very important. From education, sir, to lead a country, a leader is important, but leader should be an educator. Sir, नहीं, आपके हिसाब से लीडर एजुकेशन मतलब शिक्षित होना चाहिए। yes, sir. लेकिन आप मतलब आप अच्छी हैं एजुकेशन में, तो आप लीडर नहीं बनना चाहती। वही मैं पूछना चाहता हूँ काहे के लिए आप? Sir, ये opportunity, sir, it is my opportunity in future to become a leader, and sir, I want to say you about Abdul Kalam. He say that a leader should be educated because it lead the country. अब्दुल कलाम चाहते थे कि लीडर, जैसे हम देखते हैं कि बच्चे टॉप कर जाते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है तो क्या बनना, व्हाट विल बिकम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, तो बताते हैं मैं IAS बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा। लेकिन कोई नहीं कभी आज तक मिला मुझे कि मैं नेता बनना चाहता हूँ। क्या नेता बनने के लिए काफी ज्यादा योग्यता की जरूरत है? Sir, to become a leader, it's a very good thing, sir, and but sir, it's my dream to become a IS officer. And अच्छा, आज के समय में तुमको सबसे अच्छा नेता कौन लगा? sir, a best leader is that who leads a country very well. नहीं, हूँ नहीं, नेम बताओ। वो तो बता रही क्वालिटी जो Sorry, sir. अच्छा बताता है। Sir, नहीं, sir, in my view, a leader who lead a country very well, who can know about. अब तक कोई अच्छा नहीं था। Sir, no, sir. नेम Dr. Rajendra Prasad, he was also a very good leader. Our first prime minister, Mr.
Jawaharlal Nehru, he was also a very good leader. तो वही तो मैं पूछ रहा था कि कौन सा नेता Good morning, everyone. I belongs to English faculty, and you have said that how the student get the good education here. So in Where do this, you belong? I belong from Southern Patti. जी. Here you have said that how the student got the good education. So in the school, the students only not get the English subject, but they also study the conversation classes. This type conversation. In the conversation classes, we try to teach the student that how to speak fluently. We try to give small phrases so that they can enhance themselves. Yes, sir. आई थिंक मुझे लगता है जैसे जी. इस समय ज्यादा चीजें जैसे रटी रटाई चीजें होती है Yes, sir, there are lots of things, but we are trying that the student not only learn from book, but they also prepare themselves so that they can fight with the external environment. Yes, sir. चलिए ठीक है और कुछ जी. बोलना चाहती हैं नहीं, thank you. अभी Good morning, sir. I am assistant teacher of English from this school, SD Global School. Today we are celebrating our अपना नाम बताओ। मैं नैन्सी यादव हूँ. तो आपके दादाजी का आज पुण्यतिथि है, क्या प्रेरणा मिली है आपको, क्या उनका सिद्धांत था, आप जानते हो, उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। वो बहुत अच्छे थे, वो गरीबों की मदद करते थे और he helped the poor person who cannot able to study. He want to establish the school for poor children. Who cannot study very well. And yes. आप इसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए हो, कैसा लगा आपको टीचर का, और आपके जो दादाजी का लक्ष्य था जो पढ़ाई का, वो आपको यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? Yes, in this school there are very good teachers who help us to gain our future very well, and I'm getting a better education in this school. इसी क्रम में आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के मां दुर्गा बालिका इंटर कॉलेज अतरैट में हरिओम महाविद्यालय के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय हरिलाल जायसवाल की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान प्रबंधन तंत्र द्वारा पौधरोपण भी किया गया, साथ ही जरूरतमंदों को अंग वस्त्र एवं भोजन भी कराया गया। इसके साथ ही मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्रबंधक आदित्य जायसवाल व चंद्रजीत जायसवाल, विद्यालय के संस्थापक हरिलाल जायसवाल की 18वीं पुण्यतिथि में संकल्प लिया कि हम विद्यालय के संस्थापक के सपनों को साकार करने का काम करेंगे। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे, हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे इस समय हरिओम महाविद्यालय माँ दुर्गा बालिका इंटर कॉलेज अतरैट में है। इसके फाउंडर मतलब पूर्व संस्थापक प्रबंधक हरिलाल जायसवाल की आज कौन-सी पुण्यतिथि है? 18वीं पुण्यतिथि है। इन्हीं के द्वारा इस विद्यालय की नींव रखी गई, स्थापना की गई। इनके द्वारा कई और भी कार्य किए गए जो सामाजिक सरोकार के रूप में। आइए हम जानते हैं यहाँ के अध्यापकों से, क्षेत्र के जनता से, क्योंकि उनका स्वभाव कैसा था, उन्होंने किस उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना की और क्या कारण रहा। आइए पहले हम इस विद्यालय के जो व्यवस्थापक हैं उनसे बात करते हैं। चलिए पहले परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मेरा नाम प्रदीप सोनी, प्रधान अतरैट और माँ दुर्गा बालिका कॉलेज संचालक। आज 25 तारीख 18वीं पूर्व तिथि चाचा जी की है, स्वर्गीय हरिलाल जायसवाल जी की। अच्छा, हरिलाल जायसवाल जी के स्वभाव के बारे में बताइए और उनके द्वारा जो इस विद्यालय की स्थापना की, उन्होंने क्यों किया? उन्होंने जब पहली बार यहाँ अतरैट ग्राम सभा में आए तो वहाँ देखें बच्चियाँ जो है कोलसा जा रही थी, बहुत काफ़ी दिक्कत हो रहा था, साइकिल चला के पैदल जा रही थी, तब सब व्यवस्था में नहीं था जाने के लिए बुढ़नपुर। तो बालिकाओं के लिए एक इंटर कॉलेज खोले और डिग्री कॉलेज खोले। अच्छा, जो इंटर कॉलेज है यह जन सहयोग से है कि व्यक्तिगत उन्होंने अपने ही पैसे से? व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत तौर से। और उन्होंने ऐसा कौन सा और सार्वजनिक सामाजिक सरोकार किया? माँ दुर्गा बालिका इंटर कॉलेज के सामने माँ दुर्गा क्या नाम मंदिर भी बना है, दुर्गा जी का मंदिर भी बना है और हनुमान जी का स्थापना किया गया है। वो धार्मिक विचार के थे। अच्छा, उनकी मृत्यु मतलब कितने दिन पहले हुई थी? जैसे मंदिर स्थापना, स्कूल की स्थापना के बाद 2003 साल बाद था।
3 साल बाद। अच्छा, यहाँ पे जो विद्यालय संचालित किया जा रहा है, वह मतलब कि ग्रेजुएशन तक है, उसके आगे भी है? ग्रेजुएशन तक है। ग्रेजुएशन तक है। उनका क्या सपना था? उनका सपना था और आगे जाने के लिए, लेकिन भगवान उनको ले लिया तो कहाँ से ले जाएंगे। अच्छा, उनके मतलब सोच पर ही विद्यालय अभी चल रहा है? अभी चल रहा है, उनकी सोच पे ही चल रहा है। उसी तरह से कम फीस पे कम अच्छे फीस पे है। क्षेत्र में जो बालिकाएं नहीं पढ़ पा रही उनके लिए भी व्यवस्था है, और फीस नहीं है तब भी बढ़िया है। निःशुल्क निःशुल्क है बच्चों के लिए, मतलब क्षेत्र के लिए, ग्रामीण के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने सोचा था, हम लोग उस सहयोग से कर रहे हैं। अच्छा, कितने लागत का बना होगा विद्यालय लगभग? अब उस समय तो करोड़ रुपया लग गया था, उस समय करोड़ों रुपए। व्यक्तिगत मतलब अपना करोड़ों रुपया उन्होंने केवल सामाजिक सरोकार को लेकर के इस क्षेत्र के विकास, बालिकाओं के लिए उनकी शिक्षा सोच, हाँ उनकी सोच थी बालिकाओं के लिए, जो उन्हें शिक्षा जो है कम से कम यहाँ बीए तक वो लोग कर लें। अगर वो आज मौके पर अगर रहे होते तो और आगे जाता विद्यालय। अच्छा, जैसे उस सोच को आप लोग आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? हम लोग बढ़ा रहे हैं, अभी एमए का मान्यता हुआ है, मान्यता हो गया है। अब हम लोग लगे हुए हैं कि और विद्यालय आगे जाए। हमारा स्टाफ भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत सहयोग कर रहा है, क्षेत्र की जनता भी बहुत सहयोग कर रही है कि विद्यालय को और आगे बढ़ाया जाए। बालिकाएं जो हैं यहीं से जो है शिक्षा पूर्ण रूप से मिले। प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपने विचार को, उनके विचार को साझा किया। आइए, इसी विद्यालय के प्रवक्ता हैं, क्या नाम अपना? माता भीख मिश्रा। कब से इस विद्यालय में सेवा दे रहे हैं? हम सन 2008 से हैं। 2008 से। आप सेठ जी के बारे में, जो उनके उदार विचार के बारे में कुछ जानते हैं कि? सेठ जी को हालांकि हमने तो देखा नहीं था, लेकिन मेरी जानकारी जहाँ तक है, ये बहुत ही साधारण और सरल विचार के व्यक्ति थे, व्यक्तित्व के धनी भी थे। व्यक्तित्व के धनी थे, ये तो पता ही चल रहा है, क्योंकि आज अपनी करोड़ों रुपए की लागत से यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों की शिक्षा के लिए खोला गया, जिसमें आज के परिवेश में धन कमाओ शिक्षा के लिए, जैसे ऐसी अट्टालिकाएं, ऐसे विद्यालय जो पैसा कमाने के लिए खोले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना मतलब कि गाढ़ी पूंजी लगाई और निस्वार्थ लगाई। बिल्कुल, उनकी सोच बहुत दूरदर्शी थी, और बालिकाओं को शिक्षा के लिए यहाँ कोई माध्यम नहीं था। इस चीज को मानते हैं जो उन्होंने किया कि अच्छा किया था? बहुत ही बढ़िया किया था, बहुत ही सराहनीय कार्य उनका था, और शायद 2-4 साल और रहे होते तो और भी कुछ आगे होता। फिर भी उन्होंने जो है शिक्षा की प्रथम ज्योति इस क्षेत्र में जलाई।